Hello all, welcome to this amazing platform of Unacademy. So it's India's largest learning platform for CAT. Okay, so let's crack management examinations with Unacademy. So this is me and my name is Rajul Khare. I've cleared CAT 7 times in a row. Okay, I've done my MBA from MDI Gurgaon in the year 2014-2016. Okay, I take two sections which are quantitative aptitude and LRDI section for CAT. Apart from this, I am a founder of a company called Tamasha Entertainment in Gurgaon. So I've been mentoring students from last 8 years for QA and LRDI section, also for the second round of CAT interviews. Okay, now today's session we'll be talking about how to apply logic in the LRDI section. Okay, I mentored more than 5,000 students as I told you, and there's a lot of problem of students because every year the sections evolve in CAT. Okay, we'll talk more about it. Let's give a brief about Unacademy. Okay, so here you will get daily live classes, you will get the structured courses, unlimited access to all the database, live test quizzes. So apart from me, there will be a lot of educators there in the platform. So you can subscribe to Unacademy and you can avail the live sessions and the classes of all the educators present there. Okay, so there will be live classes, there will be different batches for syllabus completion. So in case you are preparing for 2020 or 2021, so there will be different batches for that. There are certain courses which are starting soon. Now, what is the Unacademy advantage? There's a schedule that works for you. There's no language barrier. You can learn anytime, anywhere. You can interact with your educator. You can answer the live polls, get your doubts cleared. There will be live tests, quizzes. There will be detailed report and analysis of all the mocks. Okay, there will be different PDFs and learning materials. Now, coming to the subscription model. Okay, so the subscription model in Unacademy starts from 1 month up till 24 months. Okay, so for 1 month, the pricing is around 3,150, and for 12 months, it comes down to 1,313 per month. Okay, so for 24 months, in case you are preparing for 2021 CAT, then you should go for a 24-month subscription. The pricing will be only around 800 rupees per month. So this is my code RKUS, where you can avail discount of around 10%. Okay, now coming to the class. Okay, so the agenda of today's class is to decipher how do you clear the LRDI कट-ऑफ्स. ठीक है, मैं LRDI की बात करने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी सेशन है ये. ठीक है, इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन आपको कराने वाला नहीं हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ डू यू अप्लाई लॉजिक इन LRDI. LRDI को क्रैक करने के लिए भी लॉजिक चाहिए, उस लॉजिक की मैं बात करूँगा आपसे. ठीक है ना. बिफोर वी गो अहेड, लेट अस फाइंड सम डिटेल्स ऑफ LRDI सेक्शन. वी ऑल नो LRDI में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 32. एवरी क्वेश्चन इज हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स. कितने मार्क्स का पेपर आता है? 96 मार्क्स का. ठीक है, कितनी केसलेट्स आती हैं? अराउंड 8 केसलेट्स आती हैं विथ 4 क्वेश्चंस ईच. सो दैट विल बी 32 क्वेश्चंस. ठीक है, अब आप इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखो इसके कट ऑफ का. लास्ट ईयर कैट, इसके पिछले साल के कैट के कट ऑफ की भी बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी कैट 2019 के कट ऑफ की बात करता हूँ. अगर आपके 51 मार्क्स आते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा. तो आप समझ रहे हो 51 मार्क्स आउट ऑफ 96 इज अ 99 परसेंटाइल, जिसके लिए मुझे कितने अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे? इफ आई डू 17 करेक्ट अटेम्प्ट्स आई विल गेट 51 मार्क्स. इट मीन्स मुझे अटेम्प्ट्स कितने करने? 17 प्लस. तो आप कभी 19 अटेम्प्ट्स करके आओ या 20 अटेम्प्ट्स करके आओ, उसमें आप अगर 17 क्वेश्चन सही कर दोगे, 1-2 गलत कर दोगे, तो योर स्कोर विल बी अराउंड 50 एंड यू विल गेट अ 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर कैट. नाउ सी, इन 95 परसेंटाइल कितने पर आ जाता है? ओनली 39 मार्क्स. मतलब कितने सही करने हैं मुझे? 13. अटेम्प्ट्स कितने करने हैं? 13 प्लस. एंड 90 परसेंटाइल मार्क्स कितने पे आ जाता है? ओनली 31 मार्क्स. मतलब मुझे कितने सही करने हैं? 10 मार्क्स. सो जो कट ऑफ होता है LRDI सेक्शन का, डेट होवर्स अराउंड 85 to 90 परसेंटाइल फॉर आईएम्स. ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ तो आईएम्स का ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, बट LRDI में अगर आपका 90 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल प्लस आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन अ डिफरेंट, 85 परसेंटाइल से ज़्यादा किसी का भी कट ऑफ नहीं होता सेक्शनल, अपार्ट फ्रॉम IIM कैलकाटा जिसका 90 परसेंटाइल होता है सेक्शनल कट ऑफ. तो अब आप एक डेटा देखो, अगर मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करने हैं, 36 में से मेरा कट ऑफ क्लियर, और सॉरी 32 में से मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा LRDI. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट एंड दैट्स वेयर स्टूडेंट डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. तो अभी आप पढ़ रहे होगे, आप अपनी कैट की प्रेपरेशन शुरू कर रहे होगे या बीच में कर रहे होगे, जब तक आप मॉक्स नहीं देते हो, इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करने मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, 10 क्वेश्चन सही करने का मतलब मुझे 12 अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब मुझे सिर्फ 3 केसलेट सही करनी है, मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा.
अगर मैं 4 केसलेट सही कर देता हूँ, इट मीन्स 48 मार्क्स, तो मेरा 99 परसेंटाइल आ जाएगा। एंड समथिंग बिटवीन 3 एंड 4 केसलेट मीन्स मेरा 95 परसेंटाइल आ जाएगा। और अगर आप पांच केसलेट सही कर देते हो तो आपको ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल आ जाता है LRDI में। सो द इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट इज दैट कि अगर आप 100 परसेंटाइल भी एम कर रहे हो तो आपको 2 से 3 केसलेट तो LRDI में लीव करके आनी है। मैंने पिछले स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था आपको कि कैट इज मोर अबाउट लीविंग देन अबाउट डूइंग। और LRDI में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर LRDI में आप 4 केसलेट सही कराते हो so your score will be around 48 which means a 99 percentile, around 99 percentile। और अगर मैं कैट 2017 की बात करूं तो उसमें तो 40 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गया था। ठीक है, दीज कट ऑफ कैन चेंज बट नॉर्मली पिछले 3-4 साल में सबसे ज्यादा कट ऑफ कैट 2019 का ही गया है, क्योंकि LRDI का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आया था। ठीक है, दीज थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल, उसका कट ऑफ हाई जाता है, स्पेशली वर्बल का थोड़ा हायर एंड पे जाता है। ठीक है, तो मुझे किसी भी केस में 20 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आने हैं। अगर 20 के 20 सही हो गए तो आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे एंड दैट विल फेच यू अ परसेंटाइल ऑफ मोर देन 99.5। ठीक है, आप बहुत ज्यादा एम कर रहे हो तो फिर आपको 5 से ज्यादा केसलेट सही करनी है, वरना फॉर एन एवरेज स्टूडेंट यू विल हैव टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 केसलेट। अगर आप 4 केसलेट सही कर देते हो, 5 बार ट्राई करते हो, मोर देन इनफ। सो इफ आई हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 केसलेट्स, if I have to attempt only 4 caselet, it means मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास कितना टाइम है 60 मिनट्स। तो अगर मुझे 4 केसलेट करनी है, मतलब हर केसलेट को करने के लिए मेरे पास कितने मिनट्स हैं, 15 मिनट्स। सो बीइंग ऑन द सेफर साइड आई विल सजेस्ट यू आप 10 to 12 मिनट्स लीजिए केसलेट को कंप्लीट करने में। ठीक है ना। सो दिस इज द बिगेस्ट लॉजिक इन LRDI कि मुझे सिर्फ 50% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करके आना है, मे बी 60% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करके आना है सही। सो इफ योर एक्यूरेसी इज नॉट गुड देन सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो LRDI में मुझे मोर देन 90% एक्यूरेसी तो रखनी ही पड़ेगी, टाइम नहीं मिलता है इतना। क्वांट और वर्बल जैसा नहीं है कि आप स्विच कर जाओगे, एक क्वेश्चन गलत हो गया अगला सही। अगर केसलेट सही होती है तो ऑलमोस्ट पूरी सही होती है, अगर लॉजिक गलत हो जाता है तो गलत हो जाती है पूरी। एंड दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज वेरी रिस्की। दिस इज अ मेक और ब्रेक सेक्शन इन कैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे हर साल जिनका कैट में सिलेक्शन ही इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका LRDI का कट ऑफ क्लियर नहीं। दे एम फॉर लाइक सॉल्विंग 20-25 क्वेश्चंस एक्यूरेट। देखो, अगर वही एक्यूरेसी, अगर आपने 20 क्वेश्चंस किए और आपके उसमें से 10 सही हुए, 10 गलत हो गए, तो आपके सिर्फ 20 मार्क्स आएंगे। और आपने अगर 12 क्वेश्चन किए और 12 के 12 सही हो गए तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, 36 मार्क्स विल फेच यू अराउंड 95 परसेंटाइल एंड 20 मार्क्स विल टेक यू डाउन टू अराउंड 70 परसेंटाइल। ऐसा बहुत बार हुआ है, बच्चों ने इतने क्वेश्चंस गलत कर दिए LRDI में, उनका 2 डिजिट में भी स्कोर नहीं आया। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट डेटा पॉइंट इन LRDI, योर एक्यूरेसी हैज टू बी करेक्ट एंड योर अटेम्प्ट्स हैव टू बी कंपैरेटिवली लेस। डोंट गो फॉर 20-25 अटेम्प्ट्स। वर्बल में होता है कि मैं अटेम्प्ट ज्यादा करता हूँ, क्वांट में भी कर सकते हो अटेम्प्ट, क्योंकि क्वांट में एक एक क्वेश्चन गलत होता है, पूरा केसलेट गलत नहीं होता। क्लियर है डेटा। अब LRDI में आता क्या है, व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम इन LRDI। तो LRDI का ना कोई भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है, बट स्टिल आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं। एक तो DI कैलकुलेशन बेस्ड आता है, ठीक है, जिसमें पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, वो सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज ईजी। ये मस्ट अटेम्प्ट है कैट में, अगर ये आता है ये आपको अटेम्प्ट करना है अनटिल अनलेस द ऑप्शंस आर वेरी डिफिकल्ट और द केस रेट में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखो, इसमें फ़ायदा क्या है मुझे कि अगर मैं टाइम दूंगा ना तो मेरे करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई लॉजिक नहीं अप्लाई करना पड़ता। क्लियर है। अब जो दूसरा टाइप का DI आता है वो रीजनिंग बेस्ड DI आता है, उसमें भी पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट बन के आएगा, उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, क्या लगेगा, लॉजिक। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक यू विल अटेम्प्ट इट और नॉट अटेम्प्ट इट, बट अगेन कंपैरेटिवली नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इफ यू आर गुड विद DI, आपको लॉजिक समझ आ गया तो आपकी एक केसलेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सारी केसलेट्स आपको YouTube में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं DI कैलकुलेशन बेस कर रहा हूँ। सो यू कैन गो, you can check my name on YouTube or you can subscribe to the Unacademy channel and you can find the video of calculation based DI। ठीक है, अब शुरू होता है मेरा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है अरेंजमेंट्स।
लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये मान के चलिए हर साल कैट में 102 केसलेट तो उसकी आती ही आती है, और एक कैलकुलेशन बेस्ड की किसकी तो आती ही आती है आउट ऑफ 8 केसलेट्स। अरेंजमेंट्स की तो 2 से 3 भी आई है कभी कभी, दो तो आती है ऑन एन एवरेज अरेंजमेंट्स की। सर्कुलर अरेंजमेंट्स, लीनियर अरेंजमेंट्स, ये यहाँ बैठा हूँ, मैपिंग, ये सारे। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू दिस गेम्स एंड टूर्नामेंट, नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन कैट। ठीक है ना, सिंपल भी आए हैं, जैसे एक बार 2017 में आई थिंक चेस का क्वेश्चन आया था विच वॉज कंपेरेटिवली सिंपल, बट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स अगेन कंपैरेटिवली अ वेरी डिफिकल्ट यूनिट। क्रिकेट के क्वेश्चंस आएंगे, फुटबॉल के क्वेश्चंस आएंगे, टेनिस के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है कि मैं सारे स्पोर्ट्स देखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव नॉट प्लेड चेस एंड समबडी आस्किंग यू टू प्ले चेस इन द कैट एग्जामिनेशन, बिलीव मी गाइज, इट विल बी रियली डिफिकल्ट, इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हमेशा डिफिकल्टी मानता हूँ मैं, इसलिए आप थोड़ा स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करो, गेम्स देखो, टेबल्स देखो, बहुत हेल्प होगी। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इस यूनिट को, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पजल्स ना, ये बहुत आ रहा है कैट में, स्पेशली लास्ट ईयर बहुत सारे पजल्स के क्वेश्चन आए थे। दिस इज कंसिडर्ड एज अ मिसलेनियस यूनिट। ये अगेन इजी डिफिकल्ट में नहीं आता, डिपेंडिंग ऑन द पजल यू हैव टू डू। सुडोकू में फिल करने को आ सकता है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें भी लॉजिक लग रहा है। फिर एक और इंटरेस्टिंग यूनिट है एलआर का, विच इज मिसिंग डेटा। तो आपको टेबल बना के देंगे और उसमें डेटा मिस करेंगे। बहुत आ रहे हैं इसके क्वेश्चंस, मिसिंग डेटा के काफी क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मिसिंग डेटा और पजल्स एक ही माना जाता है, पजल्स इज अ फॉर्म ऑफ मिसिंग डेटा ओनली। आपको एक टेबल बना के देंगे और आपसे बोलेंगे डेटा फिल करो। एंड द लास्ट यूनिट फॉर लॉजिकल रीजनिंग इज सेट थ्योरी, जिसमें वेन डायग्राम्स वगैरह आते हैं। ठीक है, इतना कुछ पढ़ना है मुझे, इतना कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन पजल्स बहुत मिसलीनियस हो जाता है, उसमें कुछ भी आता है फिर पेपर में। दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट इन एलआर। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द सिलेबस इज, वी आर जस्ट गोइंग ऑन विद द डेटा ऑफ द लास्ट 4-5 ईयर्स। लास्ट 4-5 साल में किसके अराउंड क्वेश्चन आए हैं वो हम प्रिपेयर करते हो। हर साल कैट में कैट इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, स्पेशली द एलआरडीआई सेक्शन। ठीक है, एक बार का डेटा पॉइंट है, एलआरडीआई में 0 नंबर लाने पे भी 50 परसेंटाइल आया था। So you can understand there are 50% people who appear for CAT जिनका नेगेटिव में मार्क्स आता है LRDA। उसका रीजन क्या है? एक्यूरेसी। रीजन इज नॉट दैट द पेपर इज डिफिकल्ट या बच्चों से गलत होता है। बच्चे क्या करते हैं? गलत केसलेट अटेम्प्ट कर देते हैं। क्लियर है गाइस? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैट 2019 में स्लॉट 1 में जो भी मैंने आपको अभी कोर्स बताया उसमें कौन से क्वेश्चंस किस यूनिट के आए थे। तो अरेंजमेंट बेस के कितने क्वेश्चंस आए थे? 8। कितनी केसलेट्स आई थी? 2 केसलेट्स। 2 केसलेट तो सिर्फ अरेंजमेंट की आई थी, और 2 केसलेट से ही कट ऑफ क्लियर हो रहा है ऑलमोस्ट। 2 से 3 केसलेट से कट ऑफ क्लियर होना है। तो अगर आपको सिर्फ अरेंजमेंट बेस, लॉजिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट एंड मैपिंग भी आता होता तो आपका 24 मार्क्स मतलब आपका अराउंड 85% आ जाता। ठीक है ना? एक केसलेट हर बार कैलकुलेशन बेस्ड की आती है, तो इसकी कितनी केसलेट आई थी? 1। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखो एक चीज याद रखना, जब भी एलआरडीआई का पेपर टफ आए तो हमेशा डीआई सॉल्व करना, क्योंकि इसमें टाइम तो वेस्ट होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड आपसे सॉल्व हो जाएगा। और अगर एलआरडीआई का पेपर इजी आता है तो कभी भी डीआई मत करना, फिर एलआर करना, क्योंकि लॉजिक सिंपल रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की कितनी? अगेन देयर वाज 1 केसलेट। देयर वाज 1 केसलेट ऑफ व्हाट? गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। नाउ दिस इज ऑलवेज द डिफिकल्ट पार्ट इन द कैट पेपर। सोच समझ के अटेंड करना गेम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी बायस होकर मत जाना कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, वो तो हम पेपर में ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पजल बेस्ड। ठीक है, अब पजल बेस्ड का मतलब समझ लो ये मिसलेनियस होता है, इसमें मिसिंग डेटा भी आ जाता, अरेंजमेंट्स भी, कुछ भी आ जाता है, इसमें पजल्स आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। उसकी कितनी केसलेट्स आई थी? 12 क्वेश्चंस आए थे, मतलब कितनी केसलेट्स आई थी? 3 केसलेट्स। और ये तीनों केसलेट्स ना मिक्स आती है, एक इजी आती है, एक मीडियम आती है, एक डिफिकल्ट आती है। यू हैव टू चूज द राइट क्वेश्चन। और एक केसलेट किसकी आई थी? डेटा इंटरप्रिटेशन में रीजनिंग बेस्ड। तो अब आप एक चीज देखो, अगर आपको सिर्फ अरेंजमेंट्स आता होता, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई तो मैं आपकी अच्छी करा ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ मेरे लेक्चर्स कर लेना, अभी मैं स्पेशल क्लासेस भी लूंगा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली अरेंजमेंट्स बहुत टफ नहीं है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। पक्का है अरेंजमेंट्स के 2 केसलेट पक्के आते हैं पेपर में, 1 से 2।
सिमिलरली पजल बेस के अभी 12 क्वेश्चन आए, हो सकता है अगले साल सिर्फ 4 आए या 8 आए, वी डोंट नो। सेट थ्योरी नहीं आई थी स्लॉट 1 में लास्ट ईयर, सेट थ्योरी भी आती है। रीजनिंग बेस्ड की कितनी केसलेट आई थी? 4, और ये कितनी है? 1 केसलेट। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप ये डेटा देख रहे हो तो आप इसमें ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बनाइए पेपर में। ठीक है, जैसे अरेंजमेंट्स या डीआई कैलकुलेशन बेस्ड या डीआई रीजनिंग बेस्ड, इनको स्ट्रेंथ बनाइए, जल्दी से स्ट्रेंथ बन जाएगी। आप पजल्स में और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में लगेंगे तो इट डिपेंड्स। तो अगर आपने 2-3 यूनिट भी आउट ऑफ दीज 3 इतने चीजें दी है, अगर मैंने 3 से 4 यूनिट भी अच्छे से कर लिए इसमें, कि आई एम वेरी श्योर कि कैट में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तो भी मैं कर लूंगा, आपका एलआरडीआई में कट ऑफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड बिलीव मी गाइज, इफ एलआरडीआई सेक्शन इज कमिंग डिफिकल्ट देन डीआई बिकम्स अ सेवियर, एंड इफ एलआरडीआई सेक्शन कम्स इजी देन एलआर बिकम्स अ सेवियर। आपको जैसे ही लगे पेपर इजी आया है, लॉजिकल रीजनिंग करने लगना, और जैसे ही आपको लगे पेपर डिफिकल्ट आया तो डेटा इंटरप्रिटेशन करने लगना, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के वो 8-10 क्वेश्चन जो आएंगे वो मुझसे सॉल्व हो गए, भले मेरे 40 मिनट्स लगेंगे लेकिन मेरे 30-40 मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है गाइस? दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट इन एलआरडीआई पेपर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब मैं आपको जब से समझा रहा हूँ, चूज करिए केसलेट, चूज करिए केसलेट, चूज। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे भी होती है स्टिल आफ्टर क्लियरिंग कैट फॉर 7-8 टाइम्स, दैट्स द वन सेक्शन इन विच आई एम वेरी वेरी क्यूरियस हाउ द पेपर विल कम, मैं कैसे करूंगा, कैसे मैं ट्रिक्स लगाऊंगा, इज एलआरडीआई। ठीक है, तो मैंने इसको, इसमें क्या होता है, अगर आपने मॉक दिया है या पिछले साल का कैट का पेपर देखोगे तो क्या होता है, पेपर ओपन होता है, 8 केसलेट्स आती है, और बच्चे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट विद द केसलेट एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। अब लक होता है क्योंकि कैट का पेपर तो रैंडम आता है, किसी के लिए पहला केसलेट दूसरा होता है, किसी के लिए दूसरा होता है, तो क्या होता है, अगर आपकी ट्रिक्स पहला केसलेट ईजी होता है, आप सॉल्व करते हो, आपके 12 नंबर आ जाते हैं, दूसरा भी ईजी होता है, उसमें भी 12 नंबर आ जाते हैं, तो तीसरा डिफिकल्ट होता है, वो आपसे सॉल्व नहीं होता, चौथा फिर से डिफिकल्ट होता है, वो आपसे सॉल्व नहीं होता, पेपर खत्म हो जाता है, आपके 24 मार्क्स आते हैं और आप पेपर खत्म हो जाता है। क्योंकि आप कोई भी केसलेट कैट की, आप ये मान के चलिए आप 10 मिनट से पहले नहीं कर सकते हैं। ईजी, बहुत ईजी आएगी तो कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहला डिफिकल्ट आता, दूसरा डिफिकल्ट आता, तीसरा मीडियम आता, चौथा डिफिकल्ट आता, फिर पांचवा ईजी आता, फिर डिफिकल्ट आता, फिर ईजी आता, फिर ईजी आता। वो क्या करते हैं, पहला करते हैं 12 मिनट वेस्ट करते हैं, -2 मार्क्स, फिर 12 मिनट वेस्ट करते हैं, -2 मार्क्स, प्रेशर बढ़ जाता है, सॉल्व कुछ हुआ नहीं है, कैट में 5 या 10 नंबर आते हैं, पेपर पूरा बिगड़ जाता है। अगर उनका ऑर्डर अलग होता तो वो कैट क्लियर कर लेते। इस बच्चे में और इस बच्चे में कोई अंतर नहीं है। इधर पे ही मैं कहता हूँ लक, लक जो बोलते हैं ना, कैट में लक वर्क करा, लक कुछ नहीं होता, लक होता है ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। और अगर आपने 10 से 20 मार्क नहीं दिए हैं कैट में, कोई नहीं आपका कैट का पेपर क्लियर करवा सकता है। ओनली लक कैन हेल्प यू कि आपके शुरू के क्वेश्चन इजी आ गए, आपने कर दिया, आपका हो गया। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि लास्ट ईयर तो सर मेरा 95 परसेंटाइल आया था कैट में, फिर मैंने प्रिपेयर किया तो मेरा 92 हो गया, एंड दे आर लाइक सर मैंने इतनी प्रेपरेशन की, मेरा पता नहीं परसेंटाइल कम क्यों हो गया। मैंने फाइनल ईयर कॉलेज में दिया था, बिना पढ़ाई किए मेरा 90 परसेंटाइल आया था, एक बच्चा बता रहा था मुझे, तैयारी करके दिया तो 82 आ गया सर, अब कैसे करूँ मैं। इट वॉज इज थर्ड अटेम्प्ट जब वो मुझसे मिला था। तो मैंने उसको यही बोला कि जब 90 परसेंटाइल आया था ना बेटा आपका, तो हुआ क्या था कि आपका ऑर्डर से ही आ गया था, या आपने सही ऑर्डर में क्वेश्चंस कर दिए थे जो आपको खुद नहीं पता है। मुझे खुद नहीं पता कि ऑर्डर सही है, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू, आई विल कंट्रोल माय ऑर्डर। Once you can control the order of the questions, I will do the same strategy session in quantitative aptitude as well. But in LRDI अगर आप कंट्रोल कर लो कि मुझे पहले केसलेट 1 करना है, फिर केसलेट 7 करना है, फिर केसलेट 4 करना है, फिर केसलेट 5 करना है, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। क्लियर होने का मतलब आपका वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 95 परसेंटाइल आ जाएगा। 99 के लिए तो आपको डिफिकल्ट केसलेट 1-2 सॉल्व करनी ही पड़ेगी। But if your LRDI is not your strength, maybe you make verbal or quantitative aptitude as your strength और इसमें कट ऑफ क्लियर कर लो। ठीक है, डेटा क्लियर है। तो अब मैं बताऊंगा आपको आप केसलेट कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है ना। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द केसलेट। जो जो टाइप 1 मैंने केसलेट बनाई है वो है इजी इजी, टाइप 2 है वो है इजी डिफिकल्ट, टाइप 3 है ये है डिफिकल्ट इजी, और टाइप 4 है ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट। ये मुझे पेपर में करनी है और ये मुझे छोड़नी है, ये बात पक्की हो गई। आप ये मान के चलिए 2 ऐसी आएगी, 2 ऐसी आएंगी, 2 ऐसी आएगी और 2 ऐसी आएगी। रफ अजम्पशन है मेरा,
जैसे कभी कैट का पेपर इजी हो जाता तो ये 3 2 2 1 हो जाता, कभी पेपर डिफिकल्ट हो जाता तो 1 2 2 3 हो जाता, कभी थोड़ा सा बैलेंस नहीं होता तो 2 3 1 2 हो जाता। लेकिन केसलेट यही 4 टाइप की है, ये आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये आपको कोई थ्योरी नहीं बता सकता until unless that person is given at least 20-30 marks or he has cleared aced the LRDI section। ठीक है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दिस टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, इनका मतलब क्या है? इजी 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 का मतलब देखो, दो चीज होती है LRDI में, पूरे कैट के पेपर में ना दो चीज होती है, एक होता है क्वेश्चन, एक होता है ऑप्शंस, हमेशा याद रखना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोर्ड पेपर एंड द कैट पेपर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में ना ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन होता है, एंड दैट्स वेयर वी लिमिट आवरसेल्फ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 10th में 12th में 97% आते हैं, बट जब वो IIT JEE या कैट देने जाते हैं दे स्क्रू देयर पेपर बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस भी हैं यहाँ, एंड वी हैव टू यूज ऑप्शंस। ऑल्दो LRDI में अब कैट में कुछ नॉन MCQs भी आने लगे हैं, बट देयर क्वांटिटी इज वेरी लिमिटेड। तो अगर 32 क्वेश्चंस आ रहे हैं LRDI में, आई डोंट थिंक मोर देन 5-6 क्वेश्चंस विल बी नॉन MCQs। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी व्हाट MCQs। तो इजी इजी का मतलब क्या है कि मेरी केसलेट भी इजी है और ऑप्शंस भी इजी हैं। टाइप 2 क्या है? इजी डिफिकल्ट, मतलब मेरी केसलेट तो इजी है, ऑप्शंस डिफिकल्ट है। टाइप 3 क्या है? केसलेट डिफिकल्ट है, ऑप्शंस इजी हैं। केसलेट 4, केसलेट भी डिफिकल्ट, ऑप्शंस भी डिफिकल्ट। ये करना है, ये छोड़ना है गाइस। अगर ये छोड़ के आ गए तो नहीं निकलेगा, और ये करके आ गए तो नहीं निकलेगा पेपर। तो कोई भी बच्चा, मैं किसी से भी मिल चुका हूँ, कैट 100% टाइलर से भी मिलोगे आप, तो मुझे नहीं लगता वो 6 से ज्यादा केसलेट सही करके आता है, क्योंकि आपने 6 केसलेट सही कर दी तो आपको 72 मार्क्स आ जाएंगे। 72 मार्क्स, 70, जब आपका 50 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ रहा है, वो भी इस साल, लास्ट टू लास्ट ईयर तो 45 पे ही आ गया था 99 परसेंटाइल। तो 76 केसलेट करनी है, मतलब 2 तो मुझे छोड़नी ही छोड़नी है। अगर मुझे 2 केसलेट छोड़नी है तो वो दोनों कहां से छोड़ूंगा मैं? डिफिकल्ट। ये करोगे फालतू में 20 मिनट्स वेस्ट होगा, नेगेटिव में मार्क्स आएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन अ इजी। देखो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है कि केसलेट इजी है या डिफिकल्ट है, ये तो भाई पढ़ के ही पता चलेगा। यू विल हैव टू इन्वेस्ट दोस 2-3 मिनट्स, या लुक से देखो। जैसे मैं आपको एक जनरल डेटा बता रहा हूँ, अगर टेबल चार्ट आता है तो ईजी ही होता है DI में। ये मेरा अपना डेटा पॉइंट है। जब तक आप 200 300 400 केसलेट सॉल्व नहीं कर लोगे, जब तक आप 20-25 मॉक्स नहीं दे दोगे, यू कैन नॉट अराइव टू दिस कंक्लूजन। So we have to be very very clear कि we have a lot of database before we approach the mock. We have solved a lot of questions before we approach the mock. ठीक है, तो वो तो उसी से पता चलेगा। मीडियम भी होता है, मैंने अभी इजी डिफिकल्ट ऐसे थोड़ा सा एक्सट्रीम केस दे लिया 0-1, ऐसे भी होता है मीडियम इजी। मीडियम को मैं कहीं ना कहीं इजी में ही मान लूंगा, इजी मीडियम या मीडियम डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगर केसलेट इजी है फिर मैं क्या देखूंगा? ऑप्शंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय इजी ऑप्शंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिफिकल्ट ऑप्शंस? ठीक है, एक तो मैंने आपको अभी बताया है नॉन MCQs। नॉन MCQs ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट ऑप्शंस में आ जाता है, क्योंकि आपको खुद से आंसर टाइप करना है और आप निकालोगे इसका इतना परसेंट ये है, आप टाइप करोगे। ऑल्दो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप फर्स्ट हाफ एन आवर में नॉन MCQs ज्यादा छेड़ना। छेड़ेंगे हम, नॉन MCQs करेंगे पक्का, क्योंकि कभी कभी ना बहुत इजी स्लिट आ जाती है नॉन MCQs की, एंड वी मेक अप आवर माइंड कि हमें नॉन MCQs नहीं करना, बट वी विल बी सुपर कॉशियस अबाउट नॉन MCQs। तो डिफिकल्ट ऑप्शंस क्या होते हैं? पहली चीज तो उसमें क्या, नॉन MCQs ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट होगा। दूसरा, जिस भी केसलेट में ऑप्शंस ऐसे हैं मोर देन वन ऑफ द अबव, ईदर A और B, मतलब आप फंसोगे उसमें। मतलब वो या तो ये है या तो ये है, मतलब या तो वो टाइप 2 है या तो टाइप 4 है। तो सबसे पहले मैं केसलेट पढ़ने से पहले क्या देखूंगा? ऑप्शंस। मैंने ऑप्शंस देखे, ऑप्शन में सीधा आ रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, और ऑप्शन ए है अमन, ऑप्शन बी है बिमल, ऑप्शन सी है चंदन, और ऑप्शन डी है एक और बंदा सोमेश। ठीक है गाइस। बट अगर होता पहला ऑप्शन अमन, दूसरा ऑप्शन बिमल, तीसरा ऑप्शन ईदर अमन और बिमल, डी ऑप्शन नीदर ऑफ देम, फिर हम फंस जाते। वहां से प्रूव हो जाता है ये LRDI की केसलेट डिफिकल्ट है, मतलब ये सॉल्व नहीं हो रही है। या इस तरह का केसलेट आ गया
कि if Aman is sitting between Bimal and Sachaman, then who is sitting between D and E? It means केसलेट कंप्लीट नहीं है. हर क्वेश्चन में कुछ डेटा जाएगा फिर वो केसलेट कंप्लीट होगी. इट इज ईदर टाइप 2 और टाइप 4. और अगर क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको डिफिकल्ट लगा, आप कॉशियस हो जाइए. आप बिल्कुल कॉशियस हो जाइए ऑप्शन पढ़ने को. अगर आपका ऑप्शन इधर उधर दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन क्लियर नहीं है, नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, मोर देन वन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, और यह लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ऑप्शन दिया हुआ है ओनली वन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, वहां पे हम कॉशियस होंगे. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं LRDI की केसलेट अटेम्प्ट ही नहीं करता हूं. मैं तो पहले हाफ में, फिर मैं उसके बाद क्या पढ़ूंगा? केसलेट. पहले मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा हमेशा और फिर क्या पढ़ूंगा? केसलेट. फिर मैं जब केसलेट पढ़ूंगा और मैं 5 मिनट, जैसे मैंने ऑप्शंस देखा, ऑप्शंस तो मैं 1 मिनट में देख लूंगा, फिर मैं केसलेट ट्राई करूंगा 2 से 3 मिनट में इंटरप्रेट करने का, ये इजी है या डिफिकल्ट है. अगर वो डिफिकल्ट हुई तो विद इन 3-4 मिनट्स यू विल लीव दैट केसलेट, यू विल एंड अप सेविंग योर टाइम. ऐसा तो होगा नहीं सब कुछ डिफिकल्ट है. और अगर वो इजी है तो भी सोचना करना है या नहीं करना है. ठीक है. सो दिस इज केस 1. तो मैं इसका ना फ्लो चार्ट बना लेता हूं. मैं इसके लिए ना आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं बढ़िया. व्हाट इज स्टेप 1? व्हाट इज स्टेप 1? हाउ डू यू अटेम्प्ट द कैट पेपर? व्हाट इज स्टेप 1 LRDI में? चेक ऑप्शंस. अब या तो ऑप्शंस डिफिकल्ट होंगे या तो इजी होंगे. डिफिकल्ट होंगे तो उसके बाद क्या करो? चेक केसलेट. फिर आप क्या चेक करो? केसलेट चेक करो. अब या तो केसलेट इजी होगी या डिफिकल्ट होगी. अगर केसलेट डिफिकल्ट हो गई, लीव. डिफिकल्ट हो गई, लीव. डिफिकल्ट इजी है तो मार्क. बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे उसको, क्योंकि उसके ऑप्शंस डिफिकल्ट है. अगर आपसे केसलेट सॉल्व भी हो गई, ऑप्शंस डिफिकल्ट है, इट विल गिव यू नेगेटिव मार्क्स. ठीक है. फिर दूसरा केस, अगर आपकी इजी है तो फिर से हम क्या करेंगे? केसलेट पढ़ेंगे. अब केसलेट अगर इजी है और डिफिकल्ट है, अगर केसलेट इजी है तो मैं क्या करूंगा? उसको सॉल्व. और केसलेट अगर डिफिकल्ट है या मीडियम है या जो भी है, तो भी मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? उसको सॉल्व. तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है? ये दोनों सॉल्व. जो भी केसलेट आएगी पहले ये सॉल्व करूंगा, फिर मैं इजी डिफिकल्ट वाला करूंगा, मतलब ये डिफिकल्ट इजी वाला. दिस इज बेटर देन दिस, बिलीव मी गाइस. क्योंकि ये केसलेट तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको केसलेट समझ आ गई 10-12 मिनट के बाद, फिर अगर आपसे सॉल्व हो गई ना, तो वो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे. ठीक है. तो इन केस यू आर गुड इन LRDI, देन टाइप 1, फिर क्या? टाइप 3, फिर क्या? टाइप 2, और फिर क्या? टाइप 4. एंड इफ यू आर लॉजिकली नॉट वेरी गुड इन LRDI, देन टाइप 1, देन टाइप 2, देन टाइप 3, ये टाइप 4. बट आई थिंक दिस इज अ बेटर स्ट्रेटेजी. क्लियर है गाइस? ठीक है. टाइप 4 मुझे छोड़ तक करना ही करना है, और टाइप 1 मुझे करना ही करना है, और टाइप 4 मुझे छोड़ना ही छोड़ना है. दिस इज फॉर श्योर. ठीक है. मैं इसी तरह से आपके जब मॉक एनालिसिस वगैरह करूंगा, तो मैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं. अगर आपको ये समझ तो सबको आएगा, अगर आप ये इंप्लीमेंट करके आगे पेपर में, बिलीव मी गाइस, 95 परसेंटाइल से कम आपका आ नहीं सकता. मेरा नाम बदल देना. किसी भी बच्चे का आता है फिर 95 परसेंटाइल, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे नहीं, क्योंकि उसको ना ऑर्डर पता है. चाहे उसने बहुत ज्यादा मेहनत भी ना हो की हो LRDI का पेपर में, तो भी उसका आ जाएगा 95 परसेंटाइल. इफ ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ही इज नॉट वेरी गुड इन LRDI, बट ही इज अटेम्प्टिंग दोस इजी क्वेश्चंस. दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ LRDI, मेन स्ट्रेटेजी ऑफ LRDI. ठीक है ना. अब जैसे मुझे पता है कि अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट मेरा अच्छा है. अब अरेंजमेंट का अगर डिफिकल्ट इजी आ गया तो मैं सॉल्व करूंगा. जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा ना, वो टाइप 2 करेगा. टाइप 2 ही वो है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क्स देगा आपको. टाइप 4 तो छोड़ ही दोगे आप. टाइप 4 में तो कुछ होना नहीं है, आप करोगे भी तो कुछ नहीं. टाइप 4 आपका पता है क्या करेगा? टाइम वेस्ट. और टाइप 2 क्या करेगा? आपका मार्क्स वेस्ट. आप जितने पॉजिटिव में लाओगे, टाइप 2 आपको नेगेटिव में कर देगा. क्लियर है गाइस? नाउ दिस वाज
फर्स्ट काइंड ऑफ पेपर ऑफ एलआरडीए, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पेपर ऑफ एलआरडीए। ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे भी मॉक्स दिए हैं या ऐसे भी पेपर दिए हैं कि पूरे 8 के 8 केसलेट में ना, पूरे 8 किए मैंने केसलेट अटेम्प्ट, क्योंकि उसके 2 ऑप्शंस इजी थे, 2 ऑप्शंस डिफिकल्ट थे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बिकमिंग वेरी स्मार्ट एंड अडेप्टिव इन द पेपर। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर मैं कोई केसलेट खोलता हूं और हर केसलेट में 4 ऑप्शंस हैं, या हर केसलेट में 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, 2 क्वेश्चन तो 2 ऑप्शंस तो इजी है, क्लियर ABCD आंसर दिया हुआ है, और 2 ऑप्शन में मोर देन वन ऑफ द अबव लिखा हुआ है। उसमें क्या करना? और केसलेट अगर इजी हुई तो मतलब पहले दोनों क्या होगा? इजी इजी, और लास्ट के दोनों क्या होगा? इजी डिफिकल्ट। तो मैं क्या करूंगा? केसलेट पढ़ूंगा, वो दोनों क्वेश्चन करूंगा, बाकी दोनों छोड़ूंगा, मूव ऑन करूंगा। मूव ऑन करते करते मैं 6 केसलेट अटेम्प्ट कर दूंगा। इन एवरी केसलेट आई विल अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस? 2 to 3, मतलब मेरे अटेम्प्ट्स फिर से कितने हो गए? ऑलमोस्ट 15, मतलब कितने मार्क्स आ जाएंगे मेरे? 45। दिस इज अनदर वे ऑफ डीलिंग विद द पेपर। ऐसा नहीं है कि पूरी केसलेट इजी इजी आएगी या पूरी केसलेट इजी डिफिकल्ट आएगी। हो सकता है एक ऑप्शन इजी इजी हो, एक ऑप्शन इजी डिफिकल्ट हो सकता है 2 ऑप्शन इजी इजी हो, 2 ऑप्शन इजी डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली वी विल चूज द केसलेट। दिस इज सेकंड स्ट्रेटजी इन एलआरडीए, ठीक है ना। मैं अब आपको ये बात ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैंने ना 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है ना, मैं 2 क्वेश्चन लिखे, केसलेट है ये एलआरडीए, ठीक है ना। आप केसलेट पढ़ो, केसलेट पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है? ऑप्शंस पढ़ने हैं। लेट्स रीड द ऑप्शंस। इफ वर्ड यूज हो गया, इफ B and G have same final score then B's point in swimming, clear options, clear options, no more than above, no none of these, मतलब सॉल्व होगा ये, मतलब ये पक्का सॉल्व होगा। दूसरा देखो, D's cumulative sum of points is increased by 20 such that he has maximum possible final score, then find the maximum possible points that D can have in water diving। easy तो नहीं लग रहा है, ऑप्शंस भले चारों इजी हैं। What can be the maximum possible increase? आंसर नहीं निकाला है, मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज कितना हो सकता है। ऑल्दो ऑप्शंस क्लियर है, समझ रहे हो ना ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है। इसमें ये नहीं दिया है डी के पॉइंट कितने हैं, जी के पॉइंट कितने हैं, बी के पॉइंट कितने हैं, मतलब। और चौथा क्वेश्चन देखिए, इफ C's cumulative sum of points is increased by 32 then which of the following statement is definitely false? फंस गए फिर से, definitely false, definitely true, ये सब गड़बड़ है यार। तो मतलब इसके ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं? एक इजी है, 3 डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब मैं पहले से ऑलरेडी क्या बायस हूं कि मुझे ये केसलेट पहले नंबर पे तो अटेम्प्ट नहीं करनी है। अब मैं क्या करूंगा? केसलेट पढ़ूंगा। जब मैंने केसलेट पढ़नी शुरू की तो मुझे केसलेट देख के ही टफ लग रही है। सो व्हाट विल आई डू? आई विल लीव दिस केसलेट एज इफ नाउ, एज इफ नाउ दिस शुड नॉट बी माई फर्स्ट केसलेट इन कैट। ये मेरी कैट में पहली केसलेट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऑप्शंस डिफिकल्ट दिख रहे हैं मुझे, और इसका केसलेट भी मुझे बहुत ज़्यादा डेटा लग रहा है, बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। ऑल्दो ये डिसीजन केसलेट टफ है कि इजी में 5 मिनट रीड करने के बाद बताऊंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वही इसीलिए हमें मॉक्स देखने हैं कि हम ये सीख जाए, ठीक है। अब दूसरी केसलेट देखते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली डेटा कम लग रहा है। How many of the countries the given 4 cities contribute more than 50% but less than 60% of the GDP of the? Clear, 0, 1, 2, 3. Clear options. If GDP of US is equal to twice GDP of Germany, thrice GDP of Japan, 4 GDP of India, then how many cities have GDP greater? फिर options clear, 9, 10, 1, 12. Clear options. If number of cities contributing towards GDP, बिल्कुल easy options है। मतलब ये किस केस में आता है? ऑप्शंस आर व्हाट? इजी। ऑप्शन में ये नहीं लिखा डेफिनेटली फॉल्स, ना ऑप्शन में ये लिखा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, ना ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, ना ऑप्शन में मोर देन वन ऑफ द, मतलब ऑप्शंस क्या है इसके? इजी। अब केसलेट पढ़ते हैं। The following graph mentions 4 cities from 4 different countries along with the percentage contribution of these cities to the respective countries' GDP. GDP of the given countries has the following order. US is greater than Germany, is greater than Japan, is greater than India. क्लियर है गाइस? ऑल क्वेश्चन पर्टेन टू द मेंशन। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी केसलेट है। ये कैसी लग रही है मुझे? इजी इजी। दिस शुड बी माय फर्स्ट केसलेट टू अटेम्प्ट इन कैट, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको खुद से सीखना है गाइस, ये आपको खुद से सीखना है। समझ में आ रहा है? तो मैं ना किसी दिन कैट का भी मॉक एनालिसिस करूंगा, कैट लास्ट ईयर कैट का पेपर का एनालिसिस करूंगा कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, इजी टफ। अगर आपको इजी टफ निकालने आ गए तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर जाओगे।
आपको एक्चुअली में LRDI में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इजी ऑलरेडी सब, आप अगर कैट की प्रेपरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं करोगे ना, ये आपको ऑलरेडी आता है, और अगर ये नहीं आता है तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है कैट क्लियर करना। ये हमें ऑलरेडी आता है, बाय बर्थ आता है। बाय बर्थ मुझे लॉजिकल रीजनिंग इतनी तो आती है कि मैं इजी केसलेट कर दूँ। आप किसी भी आप अपने बीटेक में या कहीं पे भी एप्टीट्यूड पेपर देते थे जो कंपनीज में आता था, टाटा कंसल्टेंसी में या टेक महिंद्रा में या कहीं भी, वो तो ईजी होते थे ना यार, वो तो वैसे ही हो जाते थे क्योंकि उसमें सब कुछ ईजी आता था, 2-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देते। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ एक बेसिक एप्टीट्यूड पेपर आता है, वो ईजी आता है, उनसे क्लियर हो जाता है। बट कैट नहीं क्लियर होता। क्यों? कैट इज अबाउट लिविंग, नॉट अबाउट सॉल्विंग। ठीक है, तो जो 60 मिनट्स आते हैं कैट में, उसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा? 30 मिनट्स में। उसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, ऐसे डिवाइड करूंगा। और पहले 30 मिनट्स में मैं क्या करूंगा? आई विल सॉल्व इजी 2 केसलेट, और मे बी आई विल ट्राई 1 डिफिकल्ट इजी। ठीक है ना? आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माई मार्क्स इन 30 मिनट्स। मैं ट्राई करूंगा कि मुझसे पहले 30 मिनट्स में ना 3 केसलेट सॉल्व हो जाए। जैसे ही मेरी 3 केसलेट सॉल्व हो गई, आई विल बी अराउंड 36 मार्क्स। 2 तो सही कर ही देना ताकि आपके 24 मार्क्स सिक्योर हो जाए फर्स्ट 30 मिनट्स। मैं कैसे करता हूँ कैट का पेपर? पहली शुरू की 4 केसलेट देखता हूँ, उसमें आइडेंटिफाई करता हूँ कौन सी इजी है। फिर अगली 4 केसलेट करता हूँ, उसमें आइडेंटिफाई करता हूँ कौन सी इजी है। ठीक है, अलग अलग बच्चों के लिए ना अलग अलग इजी और डिफिकल्ट इजी भी हो सकता है। जैसे मैं पर्सनल लेवल पे अरेंजमेंट्स में बहुत अच्छा हूँ या DI में बहुत अच्छा हूँ, तो DI का एक मीडियम इजी में मुझे क्या लगता है? इजी। एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन सेट थ्योरी। इफ आई एम नॉट वेरी गुड इन सेट थ्योरी, तो उसका मीडियम भी मुझे क्या लगेगा? डिफिकल्ट। तो थोड़ा इंडिविजुअल चॉइस भी होता है। और फिर लास्ट 30 मिनट्स में मुझे क्या करना है? मुझे ये इजी डिफिकल्ट सॉल्व करना है या डिफिकल्ट इजी सॉल्व करना है। ये तो तब भी नहीं करना है। इजी डिफिकल्ट में क्या करना है? आपके अगर इजी डिफिकल्ट के 8 क्वेश्चंस आए हैं कैट में, तो मैं 3-4 करूंगा जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि मुझसे हो रही है। पूरी केसलेट अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सपोज मैं आपको बताऊं हाउ डू आई गेट मार्क्स इन LRDI। तो मुझे 2 इजी केसलेट मिल गई, 2 डिफिकल्ट इजी केसलेट मिल गई, और 2 इजी डिफिकल्ट केसलेट मिल गई, और 2 डिफिकल्ट केसलेट मिल गई। तो पहले मैं क्या करता हूं? मैं इसमें अपने 24 मार्क्स सिक्योर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे 24 मार्क्स आ जाने चाहिए, ये मैं फर्स्ट 30 मिनट्स में सेव कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ? वो 2 डिफिकल्ट इजी ट्राई मारता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? पहली एक डिफिकल्ट इजी ट्राई मारता हूँ, या तो मुझसे होती है या तो नहीं होती। अगर हो जाती है तो इन दोनों में से मैं ट्राई करता हूँ मुझसे एक तो हो जाए। अगर दोनों हो गई तो बस मेरा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मेरे 48 मार्क्स आ गए। सो ईदर आई विल गेट 36 और आई विल गेट 48। ठीक है ना? अगर 36 मार्क्स आते हैं मेरे, तो फिर ये मेरी तीनों केसलेट कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है? 40 मिनट्स में आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट कर देना है। 40 मिनट्स में आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट कर देना है, 40 to 45 मिनट्स में। फिर मैं क्या करता हूँ? मैं स्विच मारता हूँ किस में? इजी डिफिकल्ट में। और मैं इजी डिफिकल्ट में क्या करता हूँ? दोनों केसलेट में से 2-2 क्वेश्चन ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। तो मतलब 2 में से मैं एक सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैं एक पूरी नहीं करता हूँ, आधी एक करता हूँ, क्योंकि वो तो ईजी है ना, कॉन्सेप्ट तो इजी है, ऑप्शंस डिफिकल्ट है, तो मैं वो वाले ऑप्शंस पकड़ता हूँ जहाँ मैं श्योर हो जाता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ? अगर ये मेरे चारों हो जाते हैं तो आई होवर अराउंड अ स्कोर ऑफ 48 + 12, मतलब मेरे मैक्सिमम स्कोर कितने आ सकते हैं? 60। और अगर मुझसे एक ही डिफिकल्ट इजी सॉल्व होती है तो फिर मैं 36 + 12 मतलब कितने मार्क्स पे रहता हूँ? 48। दैट्स वाई एवरी ईयर इन कैट आई गेट अ स्कोर ऑफ 48 to 60। अब वो मेरा लक डिपेंड करता है, तो मैं या तो 99.1 आ जाता है मेरा कैट में, या 99.9 आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन ये 2 डिफिकल्ट इजी मुझसे दोनों सॉल्व होती है, एक सॉल्व। अगर एक भी सॉल्व नहीं होती है तो फिर मैं फंस जाता हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये उनको करनी है दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इन LRDI, एंड इन केस यू आर वीक इन LRDI तो मैं बताऊंगा क्या करना है। अगर आपका LRDI स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या करना है, देखो। फिर आप क्या करो? सबसे पहले 2 इजी करिए और 24 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। फिर आपसे ये और ये होने वाली है, ये तो होने वाली नहीं है, ये भी नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। फिर आप क्या करिए? उन 2 इजी डिफिकल्ट में से 4 क्वेश्चन पहले ये करना, तो कितने नंबर आ जाएंगे आपके? ऑलमोस्ट 12 मार्क्स। ठीक है, उन 2 केसलेट में से ट्राई करना है, 2-2 क्वेश्चन दोनों में से सही हो जाए, तो आप कहाँ पर हो जाओगे? 36 मार्क्स। ये चारों केसलेट करने के लिए डोंट टेक मोर देन 40 मिनट्स।
और इन 40 मिनट्स में इंश्योर कर लो आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं। कितने मार्क्स इंश्योर कर लो? आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करना, जो आपके लास्ट के 20 मिनट्स बचे हुए हैं, गिव योर सेल्फ फुली टू वन डिफिकल्ट ईजी केसलेट, पूरा दे देना अपने आप को लास्ट के 20 मिनट्स में। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं लास्ट के 20-25 मिनट्स में एक केसलेट सही करूँ। ठीक है, अगर सही हो गई तो यू विल रीच टू 99 परसेंटाइल, सही नहीं हुई तो 95 परसेंटाइल के अराउंड आ जाएगा। कट ऑफ आपका किसी भी केस में क्लियर हो रहा है, कट ऑफ आपका किसी भी केस में क्लियर हो, तो हमें मेन हमारे लिए एजेंडा ना कट ऑफ क्लियर करना है एंड ट्राई टू गेट अ 99 परसेंटाइल इन एलआरडी। ठीक है, सो अभी मैं कुछ भी डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो मेरे पास 3-4 महीने हैं कैट प्रिपरेशन को। दिस डिस्कशन वी विल हैव ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस विद स्टूडेंट्स ऑन सितंबर और अक्टूबर। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो मुझे आज आपको सिर्फ यही बताना था। आई होप दिस सेशन वाज वेरी इफेक्टिव, वेरी यूजफुल टू यू, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर गिविंग मॉक्स। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा सेक्शन। ठीक है, मुझे मार्क्स कितने लाने हैं एलआरडीआई में? बिटवीन 35 टू 50। वर्स्ट केस में 35 लानी है, बेस्ट केस में मतलब 50। बेस्ट केस तो कुछ भी नहीं होता, बेस्ट केस तो 60 लानी है, लेकिन 35 टू 50 लानी है। दिस विल गिव मी अ परसेंटाइल बिटवीन 95 टू 100 और 99। थोड़ा सा तो लक रहेगा कि मैंने कोई केसलेट करी, या मुझे अरेंजमेंट्स आता है, उसी साल अरेंजमेंट्स के 3 केसलेट आ गए, या मुझे सेट थ्योरी नहीं आता था उस साल नहीं आया। सो अकॉर्डिंगली वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज रीच आउट टू मी, प्लीज अटेंड माय सेशंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, अभी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड डीआई पढ़ाया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, प्लीज डू दैट। ठीक है गाइज, नाउ एंडिंग द क्लास आई जस्ट वांट टू शेयर माय कोड अगेन विद यू विच इज RKUS। ठीक है, इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब योरसेल्फ टू द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैं आपको वहीं पर क्लासेस लूंगा, स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस, बैचेस भी बनेंगे। प्लीज सब्सक्राइब योरसेल्फ, श्योर गारंटी है आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अ टेलीग्राम ग्रुप टू गेट द डेली अपडेट्स ऑफ द क्लासेस विच आर हैपनिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, आई होप दिस सेशन हेल्प यू।